Hello, dear friends. Today's discussion topic is quite different because this is somehow motivated by one of my friend who gave me food for thought. This food of thought, when you discuss and you come out with many issues and you get something that what to process, how to move forward with your next lecture. So we were talking, and he is a banker, so he usually talks about the job-related discussions, and quite motivated personality. So when we were discussing, so he talked to me some about the negative energy, positive energy, people, how they are taking the lives, and since he is into the job, he's looking so many people and different, behavior. So he was discussing what is this all. So that gave me a food of thought to discuss about. Before I move further, to start my lecture, I would like to discuss with you a story which I just read a few days back. This story moves that there was a gate. King of that place, he had made a gate, and he said there is a formula in formula in mathematics which is going to open this gate. So he said all mathematicians do come and apply the formula, solve it, and then open the gate and you'll get lots of prizes. Many mathematicians came, many people who were proud of their knowledge came, and they tried and attempted to solve it, but they could not. Finally, a simple man, a layman came, and he said, yes, I'll solve it. Everybody was stunned to see that this person who has nothing to know about these all, how is going to solve it? The person thought, closed his eyes, thought for a moment, just went to the gate and just pushed the gate, and the gate got opened. The king asked, how did you open it? How did you solve it? He said, I didn't do anything. I just tried to see, before applying my mind, let me check out, is this really a problem? Or is this nothing? Just it is a problem of my mind that I'm thinking this is a problem. Try to understand, guys. Most of the times in our lives, there are very few problems. Even sometimes if you look at, they are exactly not the problems, but we make them problems. We make it complex, try to find it out, and then first make it problem, then try to resolve it, then find out the solution, then go to various people, discuss, and it was not a problem if you thought it. So today's discussion, which I'm going to talk about, is on to the cognitive dissonance. You will say, what is this cognitive dissonance? This is a theory in consumer behavior, whereby, I will say not behave, yes, this is behavioral aspect, behavior in organizations, whereby we talk about cognitive dissonance. This is nothing, this is with everybody. This theory talks about cognition. Cognition means mind. Dissonance, something, noise. This theory says that in your cognition, in human behavior's cognition, in their minds, mindset, there are always some issues. And that issues are sometimes nothing, but they are noises. Noises created by their own mind. And these noises are to be cleared. If not cleared, they will be troublesome for the organization. So there came the theory, cognitive dissonance, and this theory, if not handled, this cognition not handled properly, it will go with behavioral disorders. Yes, you will say, what are behavioral disorders? आपने देखा होगा, there are many people, अजीब सा behavior करते हैं. आप किसी भी सर्विस सेक्टर में जाइए, आप सर्विस मांगिए, वो अजीब से तरीके से कई बार रिएक्ट करते हैं, आप भी गुस्सा हो जाते हो. And actually, those who are dealing in the company, the people, their bosses,
They have to understand, and they do understand, and that's why this cognitive dissonance theory came in this particular study. They said this cognitive dissonance is nothing but it is the mental disturbance which is reacting and it is coming into the behavior of the employee. If this is so, there must be some solutions. But beforehand the solutions, how does it arise? होती कैसे है, समझना पड़ेगा. उसको समझने के लिए आपको लगाने पड़ेंगे फिल्टर्स. Number 1, type of the problem. Number 2, reason of the problem. Number 3, solution of the problem. Number 1, you must know about this problem. Is this problem mental, physical? कैसी प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम मेंटल है. क्यों है मेंटल? क्योंकि ये आपके माइंड से जुड़ी है. माइंड्स में क्या हैं? आपके थॉट्स हैं. इसका मतलब वो थॉट्स क्या नहीं हैं? बैलेंस नहीं है. बैलेंस नहीं है तभी तो डिस्टर्बेंस दे रहे हैं. यहाँ पर कौन सा बैलेंस चाहिए आपको? फैमिली विज़ ऑर्गेनाइजेशन. कौन सा बैलेंस चाहिए? बिहेवियर एट द होम, बिहेवियर एट द ऑफिस. कौन सा चाहिए? बिहेवियर एट अ सोशल प्लेस, बिहेवियर इन अ सोशल एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. रीज़न क्या है? इस प्रॉब्लम का रीज़न क्या है? रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अराइज क्यों होती है पता चल गया, मेंटल लेवल से है. मेंटल ने इसको अराइज किया, कुछ तो बेस बनाया होगा. वो जो उसने बेस बनाया है वो उसने रीज़न दिया है. कहता है मेरे रिवार्ड्स क्या हैं, इस जॉब से मिलने वाले मेरे रिवार्ड्स क्या हैं. और वो रिवार्ड्स को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. नंबर 1 मॉनेटरी एंड द सेकेंड इज नॉन मॉनेटरी. आप लोग हैरान होंगे, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ इसकी वैल्यू है. हम बहुत लोग, कम लोग इसको फोकस या तवज्जो देते हैं. और जनरली किसी से भी पूछो कि भैया तुम्हें सैलरी में क्या मिलता है, तो वो बोलता है जी मुझे एक तो फिक्स्ड रिवार्ड मिलते हैं, इतना पैसा मिलता है और इसी से मैं अपने घर का गुजारा करता हूँ. वो कभी भी नहीं कहेगा कि इस जॉब से मुझे जो रिवार्ड मिल रहा है उसके अंदर पैसा तो है ही है, मान है, इज्जत है, सम्मान है, रुतबा है, एक मेरे काम करने के अंदर खुशी है, वो मुझे नहीं कहीं भी काउंट नहीं होती. और आप नोटिस करेंगे इसको हम काफ़ी लोग डिस्कस ही नहीं करते हैं. जब इसको डिस्कस नहीं करते हैं तो सिर्फ एक ही रिवार्ड के ऊपर फोकस रहता है, मॉनेटरी, और वो है फिक्स. एक टाइम के बाद माइंड हमें रीज़न देता है कि यार पैसा तो उतना ही मिलना है, काम कम करो ज़्यादा करो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा. इसीलिए कई लोग दूसरे तरीके से रिवार्ड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं. फिर उससे मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं आता है. फिर वो जितना मर्जी बढ़ जाए, आपने देखा होगा कि सेटिस्फेक्शन का लेवल बड़ा ही पुअर रहता है, बड़ा ही लो की तरफ जाते हैं हम लोग. तो करना क्या है, कैसे उसको देखना है? कहता है इसके इस रीज़न को मिटाओ, उस रीज़न को मिटाओ, इसके साथ जोड़ के ये जो तुम्हारा नॉन मॉनेटरी रिवार्ड है जिसको आप भूल चुके हो, यू हैव जस्ट लेफ्ट इट. जब मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था तो उसने कहा कि काफ़ी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जो सिर्फ पैसा खरीद नहीं सकता, बट काफ़ी लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के ऊपर केंद्रित हैं कि क्या पैसा कितना है. तो यहाँ पर बात आई, हमने एक बहुत बड़े, वी हैव लॉस्ट अ बिगर एलिमेंट ऑफ द रिवॉर्ड. आप घर में बैठे होते, जॉब में ना होते, क्या आपको ये मिलता? ये तो नहीं मिलना था, क्या ये मिलता? आपको लोग बैंकर साहब, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, पता नहीं इंजीनियर साहब, पता नहीं किसके सेक्रेटरी साहब, पता नहीं किस किस तरीके से डायरेक्टर साहब, पता नहीं एन नंबर ऑफ काइंड वेज से आपको रिस्पेक्ट देते हैं. आपके लिए वो बेईमानी हो जाती है. क्यों बेईमानी हो जाती है? क्योंकि आपका सारा फोकस एक ही चीज़ के ऊपर है, पैसा कितना आया. मैं मानता हूँ 90% लोगों के अंदर या 90% हमारी प्रॉब्लम्स पैसे से रिजॉल्व होती हैं.
बट क्या आपको लगता है आप पैसे को क्यों कमाते हैं? उसी चीज़ को पाने के लिए जो आपको जॉब के साथ मिल रही है, नॉन मॉनेटरी, रुतबा, इज्जत, एक स्टेटस। वो चीज़ें आप रुतबा, इज्जत जो लेना चाह रहे हैं, वो सिर्फ पैसा आपको बड़ी कोठी बनाने से नहीं होगा। आपके करेक्टर की फीचर्स, आपके जॉब के अंदर आपका जॉब करने का तरीका, वो भी तो आपको दे रहा है। एंड सोसाइटी के अंदर व्हेन यू डू गुड टू अदर्स, सोसाइटी इन टर्न डू गुड टू यू। पर हम कहते हैं कि किसने देखा है? ये जो फैक्टर्स, ये जो रीजंस है ना, वो रीजंस हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। इन रीजंस की वजह से हम इस नॉन मॉनेटरी रिवार्ड को पकड़ते नहीं हैं। दिस रिवार्ड विच यू डोंट कैच, डोंट होल्ड, बिकॉज यू बिलीव दिस डजंट वैल्यू इन योर लाइफ एंड यू जस्ट कैच अप दिस। I focus. Isn't it value in your life? Someone comes in your office, doesn't speak well with you. Does this pinches you? You go to an office and the person doesn't give your reward to you. Do you feel pinch? I believe yes. क्यों? क्योंकि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि हमें एक रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है आप सोसाइटी में हो तो लोग आपको जाने? कैसे जानेंगे? सिर्फ पैसे से? या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो उससे भी? या आप एक अच्छे इंसान हो जो उस जॉब पर बैठ करके अपना काम बड़ी ही ईमानदारी से कर रहे हो उससे? क्या उस वक्त आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है? मेरे हिसाब से आपको लगती है। यू रियली फील गुड when people give name. Yes, this is a person, you go there, that person will help you out. Don't you feel good? Abhi recently, police force has been given a lot of respect. Ask them, they might have felt it like they are on to the biggest sport of the world. Why? Because ऐसी respect, क्या पैसा काट लिया था? नहीं। रिस्पेक्ट क्यों मिला? क्योंकि इतने बड़े कोरोना के खतरे में इन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर सोसाइटी की रिस्पेक्ट की, सोसाइटी की केयर की, हमारे फौजी भाइयों की रिस्पेक्ट, हमारे डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट। ट्रू वॉरियर्स इस कोरोना टाइम में क्यों बोल रहे हैं? क्या कोई पैसा बीच में आया? आज हम उन लोगों को, फौजियों को देख कर के हमारे मन में एक नमन की फीलिंग आती है। क्यों आती है? क्या कोई पैसा बीच में आ रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फ्रेंड्स, दिस इज समथिंग जो हमारा माइंड फोकस नहीं करता है। और वो जो माइंड फोकस नहीं करता वो नॉन मॉनेटरी को फोकस नहीं करता है। जब उसको फोकस नहीं करता है, मॉनेटरी को फोकस करता है, मॉनेटरी उसका रीज़न बनता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है मेंटल के अंदर, कॉग्निशन में जाती है। यार क्या लाइफ है, सुबह आ जाओ, ड्यूटी कर जाओ, रूटीन लाइफ है, रूटीन कर दिया, कस्टमर को भुगता दिया, दैट्स ऑल। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूँ कि रूटीन में आए, रूटीन में निपटा दिया। बैंकर रूटीन में आए, रूटीन में वर्कर्स को बोल दिया, लोगों के साथ हेल्प की। आप मार्केटिंग में आप मार्केटिंग की डील करिए, आप किसी और डॉक्टर्स में आप अपने पेशेंट्स के साथ अच्छे से बात करिए। आदि प्रॉब्लम्स मुझे लगता है आपके कंज्यूमर की वैसे ही रिजॉल्व हो जाती हैं। और आप शायद इस चीज़ को, फीलिंग को फील किया हो, खास करके हमारे डॉक्टर्स, फौजी भाई, पुलिस भाई, इन लोगों ने इस टाइम पे बहुत महसूस किया कि लोगों ने उनको कितनी रिस्पेक्ट दी है। जब ये हम लोग बार बार करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माइंड इट, फिर आपको एहसास होता है कि आप इस संसार में सिर्फ पैसे की वजह से, सिर्फ पैसे से ज़िंदगी जीने के लिए नहीं आए हो। आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट आती है लाइफ के लिए। वो फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट ही तो सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी जीने के लिए पुश करती है। और वो जो पुश है ना, पुश, वो पैसा नहीं देता दोस्तों, वो ये वाली चीज़ें देती है जिनको हमने बिल्कुल छोड़ दिया है, बिल्कुल उनको हमने साइड में रख दिया है। समझने वाली बात है, जरा थॉट दीजिएगा। आप अपने ऑफिस में जाते हैं, आपके ऑफिस में क्या आप लोगों से डील करते हैं? क्या आप अपने बॉस से डील करते हैं? क्या आप वहाँ पर किसी भी लोग जिससे भी डील कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं? क्या आपके शब्दों में मिठास है? क्या आपके अंदर आपके काम के प्रति सेवा की भावना है, लगन है, मेहनत की फीलिंग है? या आप कहते हो कि ठीक है यार, करना है कर दिया, दैट्स ऑल, फिनिश हो गया। माइंड इट गाइस,
आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, और फिर हम उम्मीद करते हैं जब हम दे ही नहीं रहे तो हमें लेने का, जब हमने रिटर्न ही वापस नहीं किया तो हमें लेने का क्या हक है। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जब हम लोग जॉब लगे थे, रीज़न की बात कर रहा हूँ, क्या उस दिन नहीं पता था कि फिक्स्ड रिवॉर्ड नहीं है? पता था ना। उस दिन जिस दिन जॉब मिली थी तो उस दिन खुश क्यों थे? फिर अचानक आज क्या हुआ कि हमारे अंदर ये डिसोनेंस आ गया, नॉइस पैदा होने लग गया, हमने उसको मोनोटोनियस बना लिया, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो कहता है एक चीज़ मिल गई, अरे यार ये तो मिल गई ना, क्लोज इट। अब मैं अगली के ऊपर फोकस करूंगा, उस अगली के ऊपर माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट के ऊपर फोकस जो करना है ना, वही तो आपको समझना है। आगे देखते हुए कहीं पीछे के जो आपके सेटिस्फेक्शन पैरामीटर्स हैं, कहीं वो छूट तो नहीं गए। लाइफ में पैसा क्यों कमाते हो? किस लिए? एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए, अच्छा खाने पीने के लिए, स्टेटस के लिए, अच्छी फैमिली के लिए, अच्छी गाड़ी के लिए, अच्छे घर बार के लिए, या अदर पैरामीटर्स भी हैं कि सोसाइटी में रिस्पेक्ट हो, आपको एक मान सम्मान मिले। मास्लो की हिरार्की थ्योरी, वो कहता है इंसान सबसे पहले क्या करता है? फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी करता है। फिजियोलॉजिकल मतलब रोटी कपड़ा मकान, सेफ्टी नीड्स, बैंक बैलेंसेस। कहता उसके बाद क्या शुरू होती है? नॉन मॉनेटरी सोशल नीड्स, मैं सोसाइटी का पार्ट हूं। सेल्फ एस्टीम नीड्स, क्या लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्या मैं अपने आप को जान पाया हूं। मोस्टली पीपल पहली दो, फिजियोलॉजिकल रोटी कपड़ा मकान, और उसके बाद सेफ्टी। क्यों? क्योंकि वो चीज़ फुलफिल नहीं होती। क्यों नहीं होती दोस्तों? हम लोग बोलते हैं तृष्णा बुझे हर के नाम। कहता है ये पैसे को पाने की भूख खत्म ही नहीं होती। क्वेश्चन ये है आपको चाहिए कितना? 4 कमरे का मकान है, 1 में 2 में कितने बेड पे जाके सोओगे भाई? खाना पीना अच्छा भला सब कुछ आपके पास होने के बावजूद भी दुखी हैं। किस लिए? एक अच्छी फैमिली है, एक अच्छा सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, फिर भी नहीं यार कुछ कम है। कहता है ये जो कुछ कम है ना, वो हमारे माइंड की आदतें हैं। कौन सी आदतें हैं? उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। वो हमारे माइंड की आदतें हैं नेगेटिव। क्योंकि लाइफ में हमेशा हमने किस चीज़ को देखा है? कुछ कमी है। कभी ये नहीं देखा कि हमारी इस कमी के अंदर कुछ ब्लेसिंग्स भी हैं। क्या दिया हुआ है वो नहीं देखते हैं, क्या नहीं मिला है उसको फोकस करते हैं। जब इसी को सारा दिन देखोगे क्या होगा? इससे क्या होगा? बिहेवियर खराब होगा। बिहेवियर इन टर्न क्या कर रहा है? डिसोनेंस की तरफ जा रहा है। स्कूल में थे 95%, किसी ने ये नहीं कहा 95% आए, सबने कहा 5% क्यों नहीं आए। नेगेटिविटी जो है उसके ऊपर फोकस नहीं है। स्कूल्स में बच्चे हैं, हम लोग हैं, आज मेरे पास ये है, ये क्यों नहीं है? ये सोचा ये है, कईयों के पास ये भी नहीं है। कोरोना काल में आपने सबकी सिचुएशन देखी। कई लोगों की जॉब छूट गई, पे कट्स लग गए, खाना नहीं मिला, कई लोग बेचारे सड़कों पे भूखे सोए होंगे। हम लोग सेफ हैं, हम लोगों को सब कुछ गॉड ने दिया है। क्या हम दूसरों की तरफ देख रहे हैं तो क्या हमें एक सेटिस्फेक्शन नहीं आना चाहिए? क्वेश्चन क्या है? क्यों हमारे अंदर हमेशा एक डिसोनेंस है? वो डिसोनेंस का रीजन है ये वर्ड जो हमें शुरू से देखने की आदत पड़ी हुई है। दोस्त को देखेंगे क्या कमी है, घर में देखेंगे क्या कमी है, खुद में देखेंगे क्या कमी है, सामने वाले में देखेंगे क्या कमी है। इसीलिए तो जब भी किसी के पास बैठते हैं तो कुछ ना कुछ नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या कभी एक यस मोटिवेशन पुश दूसरे को देने की बात आई है? क्या हमने कभी दूसरे की रिस्पेक्ट के बारे में सोचा है? क्या कभी सपोर्ट देने की बात की है? क्या हम कभी गुड ह्यूमन बीइंग के ऊपर मूव करें? ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, वी हैव टू थिंक दीज थिंग्स, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो पैसा है ना, ये आपके लिए चीजें खरीद के दे देगा। इन चीज़ों से आपके रुतबे, आपकी चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी। क्या आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन दे पाएगा?
हाँ, नीचा दिखा के थोड़ी देर के लिए मन राजी हो जाएगा, उसके बाद फिर आप क्या करोगे? हमें इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। वेयर आर वी हेडिंग? अब कहता क्वेश्चन आया, कहता टाइप ऑफ द प्रॉब्लम पता लगा, मेंटल प्रॉब्लम है, थॉट में है, रीजंस के अंदर आती है। और ये सारी रीजंस क्यों हैं? क्योंकि बैलेंस नहीं है। बैलेंस किसका नहीं है? कहता मेंटल कॉग्निशन का और सेटिस्फेक्शन के लेवल का। जॉब कर रहे हैं, माइंड ने घुमा दिया, कहता है अरे मैन यू हैव गॉट दिस, नाउ मूव फर्दर, इट इज गुड टू ग्रो बट इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ। गुड टू ग्रो ठीक है, साथ में सेटिस्फेक्शन लेकर के चलिए कि अभी इतना मिल गया, वंडरफुल, यस आई मस्ट मूव फॉरवर्ड, मुझे और टेस्ट पेपर क्लियर करने चाहिए। बट जो है, क्या उसकी इज्जत करते हैं? इज्जत कैसे करोगे? जिस भी जॉब में है, उस जॉब की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या उनको अच्छे से फुलफिल किया? अगर कस्टमर डीलिंग है, क्या कस्टमर को पोलाइटली बोला? अगर स्टाफ के साथ डीलिंग है, क्या स्टाफ के साथ इंटरपर्सनल स्किल्स हमारी अच्छी हैं? अगर हमने किसी को डॉक्टर की जॉब मिली है, तो क्या हम उसमें अपने पेशेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं? क्या उसके मेंटल लेवल में एक दिलासा बिठा रहे हैं? इलाज तो करना ही है। क्या हम अपनी जॉब के अंदर जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको टाइमली फुलफिल कर रहे हैं? कहता है जब आप अपनी when you are putting everything of your positivity into your job, it becomes a satisfactory parameter for yourself, because you have a feeling, I have done my job with utmost honesty, I have done my job with utmost what it demanded. आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगा। आपको पता है आज की डेट में सब लोगों के पास काफ़ी, मतलब 90% ऑफ द पीपल आर क्वाइट हैविंग एवरीथिंग, फिर भी सेटिस्फेक्शन तो नहीं है। घर घर में लड़ाई है। द रेट ऑफ एजुकेशन इज इंक्रीजिंग, द रेट ऑफ डाइवर्स और द डिसोनेंस इज इंक्रीजिंग अमंग द पीपल। हस्बैंड वाइफ के अंदर प्रॉब्लम है। क्यों? बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन टू रिस्पेक्ट ईच अदर। वी हैव ओनली वन थिंग, आई एम राइट, वाइफ सेज आई एम ऑल्सो राइट, हस्बैंड सेज आई एम ऑल्सो राइट। कई बार घर की प्रॉब्लम ऑफिस, ऑफिस की प्रॉब्लम घर, बच्चों के ऊपर। कोरोना काल में मेंटल हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन के ऊपर आजकल बहुत काम हो रहा है, क्योंकि या तो पेरेंट्स अग्रेसिव हैं या बच्चे घर में बैठे हुए अग्रेसिव है, बिकॉज द एनर्जी विच हैज बिकम टुगेदर, वो एनर्जी पास आउट नहीं हो रही। पास आउट करने के दो तरीके, एंगर से या हैप्पीनेस से। हंसते हैं फैमिली के साथ, क्वालिटी टाइम बिताया है, आर यू सिटिंग विद देम, डांसिंग विद द किड्स। होगा कैसे? जब यहां से टेंशन्स मूव होंगी तभी तो होगा। किस लिए कमा रहे हैं ये सब? किसके लिए? फैमिली के लिए। क्या फैमिली को आपने रिस्पेक्ट दिया? क्या फैमिली की केयर की? वन हैज टू थिंक अबाउट इट। कमिंग टू द पॉइंट विच इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन? एक ही है। जिस तरीके से आपने इस माइंड को ट्रेन किया था कमी को देखने के लिए, दैट लुक एट दिस ऑलवेज, अब उसको ट्रेन करिए ब्लेसिंग्स को देखने के लिए। उसको हर बार बोलिए, डोंट लुक इनटू द ओनली एंड ओनली लैकुनास इन लाइफ, लुक ऑल्सो द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। व्हाट आर दोज पॉजिटिविटीज in your life, so that you can pass your life with satisfactory parameters, feelings. ऐसा ना हो कि आपके अंदर यही रहे कि यार ये क्या है, किस लेवल पे कैसे करना है। नो, यू हैव टू थिंक अबाउट दीज ऑल थिंग्स। अब मैं आपसे कुछ बात करूंगा, ट्रेन कैसे करना है इस माइंड को। मैंने बोला कमी है माइंड ने, क्योंकि शुरू से लेके फियर फैक्टर ने साथ दिया। कहता हमने अंदर एक कमी को ढूंढना शुरू किया। आज माइंड को ट्रेन करते हैं। किस तरीके से ट्रेन करते हैं? ब्लेसिंग्स क्या हैं? मेरे उस बैंकर दोस्त ने और मैंने मिलकर के कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन किए। उसको हमने एक स्मॉल स्टेप्स फॉरवर्ड सक्सेसफुल लाइफ की तरफ करने की बात की। बट क्वेश्चन आता है, एक दिन याद रहेगा, बस 2 दिन याद रहेगा, क्यों? क्योंकि वो करेक्टर में नहीं है। मैं कह रहा हूं इस कमी को इस ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए किसी एक चीज को पकड़िएगा,
बट उसको करेक्टर में लाइएगा। जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगा, ये पॉइंट्स कोई जादू की झड़ी नहीं है, छब्बी नहीं है, जादू नहीं है। आपको इस चीज़ को समझना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ इस माइंड को नेगेटिविटी से निकाल के पॉजिटिविटी के ले जाने वाले पैरामीटर्स हैं। और हमने एक्सरसाइज करने हैं। एक पकड़िए, एक के ऊपर कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि पहले जहां पर थे और अब जहां पर होंगे उसमें फर्क होगा। ये एक सेटिस्फेक्शन है कि कहीं तो बढ़े। पॉइंट नंबर 1, वी आर मोस्ट ऑफन, कहता है यहां पर मैं हेडिंग दे रहा हूं अदर्स, हम दूसरों के साथ कैसे हैं। मोस्ट ऑफ अस, हम क्या करते हैं दूसरों के साथ, जेलस हैं, जेलस करते हैं, जेलस अदर्स। क्या करना है, कन्वर्ट कर दीजिए। जेलस किस लिए है, क्या आपको कोई डर है? आप जेलस क्यों कर रहे हैं? आप अपने इंडिविजुअल हैं, वो अपना इंडिविजुअल है। आपके ऑफिस में, कलीग्स में, आपस में हम लोग ये चीज़ें बहुत करते हैं, एक दूसरे से जेलस। क्या हो जाएगा? क्या उन चीज़ों को जेलस करके पा भी लिया तो क्या आपकी अंतरात्मा आपको नहीं जानती कि आपने क्या किया है? और अगर आपको लगता है आप भूल जाओगे, माइंडेड गाइज, यू विल रिमेंबर इट वन डे, बट रॉन्ग थिंग्स यू हैव डन इन योर लाइफ। और वो जो रॉन्ग थिंग्स आपने जो डन इन योर लाइफ की है ना, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर आप वापस नहीं कर सकते, उसको अनडू नहीं कर सकते। कोशिश करिए, करिए ही मत। और माइंड को ट्रेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, व्हेन यू जेलस अदर्स, आपके यहाँ पर एक जहर बनता है नेगेटिविटी का, रॉन्ग थिंकिंग का। निकाल दीजिए। मतलब जेलस आए नहीं करनी, उसको कहना वो अपने भाग्य का खाएगा, मैं अपने भाग्य का खाऊंगा। तो आपने जेलस को कन्वर्ट कर देना है हेल्प के अंदर। जितना हो सके उतनी हेल्प करिए, बट इसमें एक पॉइंट है, हेल्प कर दी, फिर ये कंपैरिजन ना करना कि मेरी हेल्प से वो आगे चला गया, क्योंकि वो हेल्प की, कंपैरिजन हो गया, जेलस में कन्वर्ट हो जाएगा। हेल्प करिए, आपके करेक्टर में है, आपके अंदर है। इसलिए नहीं करनी कि वो एक फॉर्मूला था, उससे मैं अच्छा इंसान बन जाऊंगा। आई एम सॉरी, जब तक वो इम्बाइब नहीं हुई कि आपने एक लाइफ को थॉट दिया, मेरी ड्यूटी है ज़िंदगी में हेल्प करना, मिलेगा उसकी दया से। तो अगर आप ऐसा करते हैं, उम्मीद नहीं करते हैं, फिर हेल्प सही हेल्प है। अदरवाइज वो फिर एक जेलस का रूप है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। हम लोग दूसरों के बारे में बहुत बातें करते हैं। टॉक अदर्स, टॉक अबाउट अदर्स, नीडलेस टू डिस्कस। कैसी टॉक्स होती हैं? क्या पॉजिटिव टॉक्स होती हैं? जो नहीं बैठा होता उसी की लेग पुलिंग होती है। टॉक अबाउट अदर्स, हमें पहली बात टॉक तो करनी ही नहीं है। अब अदर्स की करना चाहते हो, जस्ट ओनली डू वन थिंग। कौन सी टॉक आएगी? ओनली पॉजिटिव। उसमें क्या अच्छा है, इस पे फोकस करिए। कभी भी इस पे मत फोकस करिए उसमें क्या बुरा है, क्योंकि ये उसकी बुराई नहीं दिखा रहा, ये आपके करेक्टर की फीलिंग दिखा रहा है कि आप में क्या बुरा है, आपका मेंटल सेटअप कैसा है। उसमें लाख बुराइयां होंगी, लेट इट बी, उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी का नहीं है। हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है एक क्लीन सेटिस्फाइड थॉट्स। और वो क्लीन थॉट्स क्या हैं कि हम जब भी सोचेंगे हम पॉजिटिव सोचेंगे। आपको कुछ गड़बड़ लगती, शांत हो जाइए, माइंड को उस तरफ इंस्टिगेट मत कीजिए, डिस्कस करने के लिए उसको वहीं पर रोक दीजिए। आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। थर्ड पॉइंट जो हम में से काफ़ी लोग करते हैं, और गुड होते नहीं हैं, क्या करते हैं, गुड प्रिटेंड करते हैं। प्रिटेंड टू बी गुड, अच्छा दिखना, अच्छा बनने के ऊपर फोकस करते हैं, बट अच्छे नहीं हैं। क्या करना है, गुड बनना है। ये जो प्रिटेंडेड है ना, वो प्रिटेंडेड छोड़ दीजिए, उसको किस पे ले आइए, गुड के ऊपर ले आइए। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ हमेशा ये शेयर करता हूँ, जिस दिन भी प्लेसमेंट्स होती हैं वो उस दिन बहुत ही सुंदर बन के आते हैं। They are so too tie, boy, coat and everything. Yes, they are really looking awesome. And I sometimes discuss, why don't you be like a daily? ऐसा क्यों नहीं बन के आते? वो कहते हैं जी हमने इम्प्रेस करना है किसको, प्लेसमेंट कंपनी को। लाइफ में सिर्फ दूसरे को इम्प्रेस करने की बातें कर रहे हो, खुद को इम्प्रेस नहीं करना। आई एम लुकिंग टुडे गुड विद दिस टाई, दिस एवरीथिंग, आई एम फीलिंग फाइन। आपके अंदर के अंदर एक एनकरेजमेंट नहीं आता है क्या? सोचिए ज़रा। पहनना, मेंटल हेल्थ का, और अच्छा पहनना,
आपकी मेंटल हेल्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। कहता है अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिटेंड टू बी गुड। कैसे? शब्दों से, पहनावे से। अंदर क्या है किसी को नहीं पता, लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था। यहां पर करना क्या है, ये प्रिटेंडेड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या, गुड के ऊपर फोकस करना है कि मैं तो हूं ही ऐसा, I am like this only. So if you are like this only, तो आप गुड ही रहोगे। तो जब आप गुड रहोगे तो चीजें बदल जाएंगी। नेक्स्ट आता है, आप शो ऑफ की तरफ फोकस करते हो। शो ऑफ किसको? लोगों को। किस लिए? क्या दिखाना है? क्या लोगों को पता नहीं चलेगा आप कैसे हो? हाउ आर यू फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। रिमेंबर, अगर आप किसी के साथ रहते हो कि आप लोगों को जान नहीं पाते वो कैसे हैं। अगर आप लोगों को जान पाते हो कि लोग आपको नहीं जान पाते आप कैसे हो। सो ये जो चीज शो ऑफ है, चाहे मटीरियल लाइफ में हो चाहे आपकी मेंटल लाइफ में हो, सूनर और लेटर सब बाहर आ जाती है। मेक श्योर कि आप इसको ना करें। अगर करना है तो सेल्फ के साथ करें, सेल्फ को शो ऑफ दिखाएं कि यार मैं ऐसा हूं, मुझे इसको इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। झुठलाना नहीं है, अपने आप के साथ इंप्रूवमेंट के लिए सच्चे लेवल पे जाना है। कहता है शो ऑफ छोड़ देंगे, आधी टेंशन खत्म हो जाएंगी। मैं दिखता कैसा हूं, अरे आपने कपड़े पहने, पहली बात अच्छे पहनिए। दूसरी बात, मेंटल थॉट्स जो है वो क्लीन रखिए। जब आप खुद को अच्छा फील कर रहे हो, मेंटल थॉट्स क्लीन है, तो आप दूसरों के लिए क्यों चिंता कर रहे हो कि मेरी शो ऑफ हो रही है कि नहीं हो रही है। आप सेल्फ के ऊपर ट्रस्ट रखें। आधी से ज़्यादा टेंशन तो खत्म ही हो जाएगी। लोग क्या सोचते हैं, मैं कैसा दिखता हूँ, क्या वो मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं या बुरा बोल रहे हैं, चीज़ें ही खत्म हो जाएंगी ना। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि आपने ये जो एलिमेंट है ना शो ऑफ का, वो एलिमेंट ही आपने छोड़ दिया। एक और कहता लोगों को सेल्फ और फैमिली फोकस के ऊपर बड़ा आजकल ट्रेंड है। दैट दे ऑलवेज फोकस ऑन माई सेल्फ। काम कर रहे हैं, देखेंगे मेरे लिए कब जाना है, मेरी फैमिली के लिए कब जाना है। सामने वाले के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जिस सीट पे बैठा हूं उस सीट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नोबडी नोज। वो कहता ठीक है मैंने कर दिया, मुझे अपने दूसरे पार्ट को भी देखना है। कहता जिस दिन आप अपने इस सेल्फ को छोड़ के सोसाइटी एज अ फैमिली समझ लोगे, where you are finding that you are responsible for whole of the society। आज की डेट में मैं सलाम करता हूं हमारे उन सारे ट्रू वॉरियर्स को, क्योंकि उन्होंने सेल्फ और फैमिली फोकस नहीं देखा कोरोना काल में। हम लोग घरों के अंदर बैठे बंद होके बैठे हुए हैं। कहता है ये जो हमारे ट्रू वॉरियर्स हैं, डॉक्टर से लेकर पुलिसमैन तक, बैंकर्स, प्रेस एंड एवरीवन, ये लोग किसको अपनी फैमिली मान रहे हैं? सोसाइटी एज अ फैमिली, सर्विंग देम। जब उनकी अपनी लाइफ डेंजर पे लगी हुई है, क्या ऐसा हो सकता है कि हमने एक ऐसे लोग देखे हो जो अपनी लाइफ को डेंजर में डाल के दूसरे के लिए जी रहे हैं? ऐसे ऐसे डॉक्टर्स जो अपने बच्चों को मिले, फैमिली को मिले, दूर तक बाहर से ही मिल करके, बाहर मिलते भी नहीं है, पुलिस वालों को देखा है। ऐसे लोग, ऐसे हर वो इंसान, फौजी भाई तो हैं ही, हर वो इंसान जो इस समय सोसाइटी एज अ फैमिली कर रहा है, उसकी रिस्पेक्ट क्या है ये आप लोग भी जानते हैं। और वो क्यों हुई है इसके पीछे फाइंड आउट करिए। यहाँ पर मैंने आपको मॉनेटरी फैक्टर लिखा था, उससे नहीं हो रही है, नॉन मॉनेटरी फैक्टर से हो रही है। और नॉन मॉनेटरी फैक्टर से क्यों हो रही है? क्योंकि आपने अपना कर्म यहाँ से निभाया है, यहाँ से नहीं निभाया है। फिर आप अपने आप को रोज मोटिवेटेड महसूस करते हो। वो मोटिवेशन कहाँ से आ रही है? वो मोटिवेशन आ रही है हमारे नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट से फ्रेंड्स, ना कि हमारे मॉनेटरी एस्पेक्ट से आ रही है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, हम कई लोगों से ये बहुत लेना चाहते हैं, रिवेंज। उसने ऐसे किया था, उसने वैसे किया था, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके साथ ये डिस्कस करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा है वैसा है। छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दीजिए? क्योंकि उससे रिवेंज लेने से पहले आप अपने आप से रिवेंज ले रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड में ये चीज़ इतनी फंसी हुई है कि वो यहाँ पर बैठी हुई है। डस्ट है, ये गलत है जी। जितना यहाँ बिठाया है उतनी देर ये यहाँ रहेगा, उससे बदला पता नहीं कब लेंगे।
रिवेंज पता नहीं कब लेंगे, बट अपने आप से ज़रूर ले रहे हैं, क्योंकि इसको दिमाग में रखा हुआ है। कहता है रिवेंज का इसका सॉल्यूशन क्या है? कहता माफ़ कर दो, भूल जाओ, लिव इट। उसने किया, उसके कर्म, वो भुगतेगा, वो देखेगा, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो आपने सबसे पहले खुद को बचाया। रिवेंज की फीलिंग नहीं आई तो उसका तो बाद में, खुद को आपने उस लेवल से निकाल लिया। आज की डेट में सोसाइटी में एक नई ब्रीड आ गई है। वो नई ब्रीड कहाँ पर काम करती है? वो ब्रीड कहती है जी, ये वो लोग हैं जिनको मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ, दोज हु आर थैंकलेस। काम किया, काम निकलवाया, निकल लिए। काम निकलवाया, निकल लिए का मतलब क्या है? हो गया, जॉब कर दी, दैट्स ऑल, मिल गया, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। शायद थैंक यू भी ना कहें। थैंकलेस सोसाइटी हो गई है। किसी ने हमारा काम किया, हम इसको थैंक यू भी नहीं बोलते हैं। सपोर्ट तो दूर करने की बात है, याद तो दूर रखने की बात है। क्रूशियल टाइम में किसने क्या किया, वी डोंट रिमेंबर। ये आपके करेक्टर का पॉइंट है। हमें नहीं करना है, हमने अच्छी चीज़ करनी है। वो थैंकलेस है, होने दीजिए, क्योंकि जितना आप थैंकफुल होते जाएंगे उतना आपको रिटर्न्स मिलती चली जाएंगी। और जब आप सोचना ही बंद कर देंगे तो फिर देखिए नज़ारा क्या है, क्योंकि आप अपने ऊपर फोकस करके अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कर रहे हैं। फिर देखिए लोग आपको, सोसाइटी आपको कैसे रिटर्न करती है इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, केयर, लव, अफेक्शन। तो क्या करना है? थैंकलेसनेस को किस में बदल देना है? थैंकफुलनेस में। फुल ऑफ थैंक्स ऑलवेज। जीवन का एक मंत्र जो लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। बड़े सारे लोग हैं जो रूड स्पोकन है, रूड बोलते हैं। किस लिए? हमें कोई बोले कैसा लगेगा? ये मेरे अपने से लेकर के हम सब के अंदर एक चीज़ को पकड़ना होगा, वो ये है इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, सॉफ्ट स्किल्स का एक पार्ट है। इंटरपर्सनल स्किल कहती घर में बात करो, बच्चों से बात करो, बड़ों से बात करो, लोगों से बात करो, किसी से भी बात करो, ना आप पसंद करते हैं ना सामने वाला पसंद करता है। जब कोई चीज़ हम खुद ही पसंद नहीं करते, हम सामने वाले को दे कैसे सकते हैं? अगर वो हमें इन रिटर्न आती है तो कैसा फील होता है? किसी भी स्थिति में, किसी भी तरीके से कोशिश करें कि हमें ये रूड नहीं बनना है। आपको गुस्सा आ रहा है, शांत हो जाइए। क्यों शांत हो जाइए? क्योंकि यहाँ से निकले हुए जो वाणी से निकले हुए जो हमारे वचन है ना, वापस नहीं आएंगे। डोंट स्पीक इफ यू आर गोइंग टू स्पीक रूड। करना क्या है? माइंड को ट्रेन करना है। किसकी तरफ? सॉफ्ट स्पोकन की तरफ। देखिए एफर्ट क्या मार रहे हैं? हमने कहा इस कमी को रिमूव करना है। किधर लेके जाना है? ब्लेसिंग्स की तरफ। कैसे? माइंड को ट्रेनिंग देनी है। कहता है इसको ट्रेन करना है। कहता है ये ट्रेन करके ब्लेसिंग्स को काउंट करे, और वो ब्लेसिंग्स काउंट करने के लिए हमें अपने अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। वो अपने अंदर चेंजेस किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास डिसोनेंस है। मेरा डिसोनेंस बोलता है कि मेरा मेंटल प्रॉब्लम है, कॉग्निशन में प्रॉब्लम है। कॉग्निशन में प्रॉब्लम क्या? रीजन की वजह से। रीजन क्यों है? क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं। ट्रेन करेंगे माइंड को, मूव करेंगे वन बाय वन। एक एक चीज के ऊपर फोकस करिए, कोई जरूरी नहीं है। मैं कहता हूं सबसे पहले फोकस करेंगे रूड स्पोकन को लेकर के सॉफ्ट स्पोकन की तरफ जाएंगे। कुछ भी हो जाए गुस्से नहीं बोलना, रूड नहीं बोलना। जिस दिन ये छूट जाएगा आधी से ज्यादा चीजें निकल जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको मैं टॉप पे लिखूंगा, कहता कुछ भी हो जाए किसी भी दशा में ये नहीं छोड़नी। जब तक स्माइल है मेंटल हेल्थ कामयाब रहेगी। मेंटल हेल्थ है तो डिसोनेंस भाग जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, एक कोशिश है, एक अटेम्प्ट है। वो अटेम्प्ट क्या है? कहते हैं डिसोनेंस से आधे से ज्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, स्ट्रेस है। कैसा स्ट्रेस है? जैसे मैंने शुरू में स्टोरी बताई, प्रॉब्लम तो थी ही नहीं, बना ली गई। सामने वाला ऐसे सोचता है, मेरा हस्बैंड मेरी इज्जत नहीं करता है, मेरी वाइफ मेरी केयर नहीं करती है, मेरा बॉस मेरे साथ ऐसे बात करता है। सामने के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। कभी खुद पे लगाया है मैं कैसे करता हूं?
ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हमने ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ना, है ही नहीं थी प्रॉब्लम। कोई क्या कर रहा है, शायद आप नेगेटिव सोच रहे हैं इसलिए हो रहा है। आप पॉजिटिव सोचिए, मेरा बॉस मेरे से खुश है, मेरी फैमिली मुझे बहुत प्यार करती है, मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूं, लोग मुझसे खुश हैं। क्या आप कभी इस तरीके से सोच पाते हैं? सोचना है, उसको ट्रेन करना है। तब ट्रेन कैसे करेंगे? ट्रेन करने का सबसे बेस्ट तरीका, धीरे धीरे मूव करिए। पहले स्माइल रखिए, रूडनेस से सॉफ्टनेस की तरफ आइए, थैंकलेस से थैंकफुल बनिए। आपका कोई छोटा सा भी काम करे उसको थैंक यू जरूर कहिए। फीलिंग ऑफ ग्रेटफुलनेस है ये, आपके करेक्टर का पार्ट है। रिवेंज छोड़ दीजिए, फॉरगिवनेस में आइए। कब होगा? जब माइंड को ट्रेन करेंगे, मैंने गलत नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि मेरा नुकसान पहले है। सेल्फ की फोकस को किस में चेंज किया? सोसाइटी के फोकस में चेंज किया। कमिंग हियर, शो ऑफ, नो नीड। अगर आप वाकई में एक समर्थ और प्रबल, the kind of a person or a personality who is really impressive and rich from inside, उसको शो ऑफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। मटेरियलिस्टिक थिंग्स से शो ऑफ जितना मर्जी कर लीजिए, द डे यू स्पीक, काफी लोगों के पास काफी कुछ है। क्या हर बंदे की रिस्पेक्ट है? विचार कीजिए। टॉक अबाउट अदर्स, नो नीड। करना चाहते हैं करिए, पॉजिटिव टॉक करेंगे। नो नीड टू जेलस, सिर्फ और सिर्फ हेल्प करेंगे। दोस्तों, ये जो कोग्निटिव डिसोनेंस है ना, ये कुछ बड़ी चीज नहीं है। ये हमारे माइंड की पावर है, एनर्जी का मूवमेंट है। और वो एनर्जी का मूवमेंट वी हैव जस्ट गॉन फॉर, मैं बोलूंगा, इनएबिलिटी टू चैनलाइज इट। और क्यों है? क्योंकि शुरू से नेगेटिव चलता आ रहा है। कुछ नहीं करना, द मोमेंट वी हैव अंडरस्टूड, वी हैव चैनलाइज्ड दिस फ्रॉम द नेगेटिव साइड टू द पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड करना कैसे है, उसके लिए ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। सारों को फोकस जल्दी नहीं करना है, क्योंकि 2-3 दिन के बाद फिर हम वहीं पे आ जाएंगे। मैं कह रहा हूं इसको इम्बाइब करना है, पार्ट ऑफ अ करेक्टर बनाना है। पार्ट ऑफ अ करेक्टर का सबसे बड़ा मंत्र स्माइल के साथ साथ रूडनेस को छोड़ना है। रूडनेस जिस दिन छूट जाएगी, सॉफ्टनेस आ जाएगी। वो रूडनेस कब छूटेगी? जब यहां पर आप शांत हो जाओगे। सॉफ्टनेस यहां से, बिहेवियर ही तो है। मैंने बोला ना, टाइप ऑफ द प्रॉब्लम मेंटल। कहता रीजन क्या है? कहता हमारे अंदर यहां पर डिसोनेंस है। डिसोनेंस क्या कर रहा है? मेरे बिहेवियर को खराब कर रहा है। कहता जब डिसोनेंस नहीं होगा तो मेरा बिहेवियर अच्छा होगा। बिहेवियर अच्छा होगा, शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, गुस्सा आएगा, सॉफ्ट रहना शुरू करेंगे, चीजों को छोड़ना शुरू करेंगे। आपको लगेगा यस, थिंग्स आर गेटिंग चेंज्ड, काफी बदल गई हैं चीजें। धीरे धीरे इस सेल्फ को एक इंप्रूवमेंट की स्टेज की तरफ लेकर जाइए। फिर जो पहले 2 पॉइंट है ना, वो तो आपके मनी ने पूरे कर दिए मास्लो की हायरार्की थ्योरी में, फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स। जो बाद वाली पॉइंट्स है ना, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, वो आपको सोसाइटी पूरा करेगी। आज की डेट में मैं फिर कह रहा हूं, डॉक्टर्स, फौजी भाई, पुलिसमैन, कोरोना काल में पत्रकार, हर वो लोग जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, उनकी रिस्पेक्ट क्यों है? जरा सोचिए। रीजन बिहाइंड, वो रीजन है उनकी सेल्फलेस सर्विस। और उनके साथ साथ आई एम फीलिंग ग्रेटफुल फॉर फैमिली मेंबर्स जिन्होंने अलाउ किया उन लोगों को जाकर के ऐसी सर्विस करने के लिए। निश्चय ही वो तारीफ के काबिल हैं, रिस्पेक्ट के काबिल हैं, और हम दे रहे हैं। और वो जो दे रहे हैं वो हम अपने कि कुछ उनको इसीलिए नहीं दे रहे कि हमारा देना बनता है, उन्होंने अर्न किया है बाय डूइंग सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। और उससे क्या आती है? सेटिस्फेक्शन आती है। डिसोनेंस खत्म होगा। पॉजिटिव इन्फ्यूजन लाइए, नेगेटिव इन्फ्यूजन छोड़ दीजिए। लाइफ को और हेल्दी महसूस करेंगे। आपको लगेगा लाइफ पहले से यंग हो गई है, अच्छी हो गई है। इसी कामना के साथ कि I've done something. Thank you very much. शुक्रिया दोस्तों।